میں خداوند کا خادم پاسٹر اسحاق کیف کوکھر پاکستان گوسپل نیٹ ورک اسٹوڈیوز کراچی سے میں آپ کی خدمت میں حیرت سے بڑھ کر حیران کن اس کتاب کو لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے میرے دوست ریورنڈ بلیک ویسٹرن نے آپ کے لیے تحریر کیا ہے۔ اس کتاب کا آج تیسرا باب میں آپ کے سامنے پیش کرنے کو ہوں۔ پراسرار خاموشی۔ کیا کوئی انسان کھڑا رہ پائے گا جبکہ ابھی اس کی موت کا اعلان کیا گیا ہو؟ جی ہاں، یسوع پیلاطس کے سامنے کھڑا رہا اور کچھ نہ کہا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع نے پھر بھی کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ پیلاطس نے تعجب کیا۔ اس واقعے کا ذکر مرکز کے انجیل 15 باب اور اس کی 5ویں آیت میں پایا جاتا ہے۔ جب پیلاطس نے یسوع کو ہیرودیس کے پاس بھیجا تو ہیرودیس بھی حیران تھا کہ نہ تو یسوع نے کچھ کہا اور نہ اس نے کچھ کیا، اور وہ اس سے بتیری باتیں پوچھتا رہا مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ لوکا 23واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ بھلا اس بابت یسوع کی خاموشی سے ہم کیا اخذ کریں گے؟ ہمیں یہ بات بڑی عجیب محسوس ہوتی ہے کہ یسوع نے کسی الزام کا جواب تک نہ دیا، اور یہی وہ پراسرار خاموشی ہے۔ ادھر ہمارے ملک میں ایک ملزم شخص آئین کی 5ویں ترمیم کی درخواست کر سکتا ہے اور عدالت عظمیٰ کے سامنے خاموش رہ سکتا ہے کہ بہت سے سوالات کے باوجود کٹہرے میں کھڑا ملزم جواب نہیں دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کسی بھی شخص کو ایسی باتیں کرنے سے بچاتا ہے جو بہتوں کے لیے نقصان دہ ہوں، اور یہ حربہ اکثر امریکی ایوان نمائندگان میں کمیٹیوں کے سامنے سماعتوں کے دوران استعمال ہوتا ہے، اور جب کوئی شخص خاموش رہتا ہے تو یہ جرم یا معصومیت کی علامت ہو سکتی ہے کہ پوچھ گچھ میں ایک ملزم اپنے دفاع میں خاموش کھڑا رہے اور سوال جواب کرنے والا کچھ کہہ نہ پائے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص جذبات میں اس قدر بھڑک جاتا ہے کہ عدالت عظمیٰ اس پر بھی ایکشن نہیں لے پاتی، اور اکثر اوقات تو ملزم کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے لبوں سے کوئی الفاظ جاری نہیں ہو پاتے۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کیسے کریں، اور جب وہ کوشش کریں تو کوئی لفظ ذہن میں نہیں آتا۔ کیا یسوع کی خاموشی کا یہی سبب تھا؟ میں تو ایسا نہیں مانتا، پر یسوع اپنے الزام لگانے والوں کے سامنے بالکل خاموش رہا۔ پوچھ گچھ کے دوران یسوع پر جذبات غالب نہیں ہوئے۔ علماء بیان کرتے ہیں خاموشی بہترین حکمت ہے، اور یہ کہاوت یسوع کی خاموشی کے بارے میں سب سے موزوں ہے۔ یسوع اس لیے خاموش نہیں تھا کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ یسوع ڈر کے مارے کسی 5ویں ترمیم کا سہارا بھی نہیں لے رہا تھا، بلکہ یسوع کی خاموشی تو کوئی اور ہی وجوہات بیان کرتی ہے۔ یسوع کو پیلاطس اور ہیرودیس کے سامنے لے جایا گیا تھا۔ وہ دونوں بادشاہوں کے طور پر حکومت کرتے تھے، حالانکہ حقیقت میں یسوع آپ خود ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ کو جھوٹے الزامات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان دونوں زمینی بادشاہوں کا خیال تھا کہ وہ زندگی اور موت کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یسوع ایک خود مختار بادشاہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ذرا غور کیجئے کہ اس روز وہ آزمائش میں تھا۔ طنز کرنے والے آزمائش کا شکار ہوئے، اور سچ تو یہ ہے کہ اس روز ساری انسانیت آزمائش میں تھی، اور یہی سبب ہے کہ یسوع نے کوئی جواب نہ دیا، اس لیے کہ وہ منصف تھا، لہٰذا منصف سے کبھی سوال و جواب نہیں کیے جاتے۔ یہ منصف ہی تھا جو خود فیصلہ لے سکتا تھا، لیکن اس معاملہ میں جج یعنی منصف نے مجرموں کی جگہ لے لی، اور اس نے وہ سزا قبول کی جس کے حقدار ہم تھے۔ یسوع کی خاموشی کی ایک وجہ اس سے پوچھ گچھ کرنے والوں کا غیر مصنفانہ رویہ بھی تھا۔ تاہم پالوس جانتا تھا کہ یسوع بے قصور ہے، لیکن اس میں یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ یہودی رہنماؤں کے خلاف کھڑا ہو۔ وہ انصاف کرنے سے زیادہ اپنی حکمرانی کے بارے کچھ زیادہ ہی فکر مند تھا۔ ہیرودیس چاہتا تھا کہ یسوع کوئی معجزہ دکھائے۔ جب پیلاطس نے یسوع کو واپس ہیرودیس کے پاس بھیجا تو ہیرودیس خوش ہوا۔ اس نے یسوع کے بارے کافی سن رکھا تھا۔ واقعی وہ چاہتا تھا کہ یسوع کوئی معجزہ انجام دے، لیکن جب یسوع خاموش رہا تو ہیرودیس کے ساتھیوں اور وہاں موجود لوگوں نے یسوع کو صلیب سے نیچے اترنے کا کہہ کر یسوع کا مذاق اڑایا۔
यसु मुतलाशी और फरोतन दिल का जवाब देता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि खोया हुआ गुनाहगार और तलाश करने वाला नजात दहिंदा हमेशा एक दूसरे को मिल जाते हैं। ज़काई की मिसाल ले लीजिए कि वो यसु को देखने की तड़प में एक दरख्त पर चढ़ गया। जब यसु ने ज़काई के साथ बातचीत की तो उसने बड़ी हलीमी का इजहार किया और इकरार किया कि उसने बड़ी बेईमानी की जिंदगी बसर की है। लेकिन यसु ने कहा, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। लूका 19वां बाब और इसकी 10वीं आयत। यसु अपनी जमीनी जिंदगी में गुनाहगारों और खोए हुओं को ढूंढता रहा है। यसु ने मुशर्रफ बेटे की कहानी सुनाई जिसने अपने बाप की मिरास को गुनाह आलूद और आवारा जिंदगी में ज़ाया कर दिया था। इसके बावजूद बाप उससे प्यार करता है और आए रोज उससे अपने बेटे की तलाश में निकलता था। आखिरकार बेटा मुशर्रफ वापिस आया और अपने बाप के नौकरों में शामिल होने के लिए राजी हो गया। लेकिन बाप ने अपने नाफरमान बेटे को बगैर डांट डपट के कबूल किया और अपने गले लगा लिया। कैसी अजीब बात है कि हमारे आसपास ऐसे लोग पाए जाते हैं जो यीशु को कबूल तो नहीं करते लेकिन यीशु की बरकत को हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल हेरोदिस की तरह जो यीशु के मोजज़ात और कुदरत को देखना चाहता है लेकिन उसके साथ तल्लक नहीं रखना चाहता। यही सबब है कि जब लोग अपनी खुदगर्जी का इजहार करते हैं तो यीशु खामोश रहता है, ख़ुसूसन उस वक्त जब वो इन नमूदो नुमाइश वाले फिकियों और फरीसियों की तरह अपनी रास्तबाजी का मुजाहरा करते हैं। हालांकि अटल सच्चाई भी यही है कि कई जोर आवर रास्तबाजी के ताट से कासिर रह जाएंगे। यीशु ने कहा कि तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को तबीब की ज़रूरत है। वो चरवाहों और मछेरों और बेवजूदों के पास आया, लेकिन तंज करने वाले अपने रूहानी दिवालियापन से बखूबी वाकिफ थे कि वो तकब्बुर से बड़ा रूहानी मेयार दिखाने वाला दौर बड़ा मजहबी किस्म का था जिसने यीशु को रद्द कर दिया और सलीब पर खींच दिया और तंज करते कि वो उन्हें मौजज़ा दिखाए, लेकिन फिर जवाब में वही खामोशी पाई गई। यीशु को तो अपने आप को साबित करने या अपना दफा करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि यीशु के पास हज़ारों तुमन फरिश्तगान तलब करने का अख्तियार था। वो सिर्फ एक लफ्ज़ के ज़रिए सलीब पर खींच कर कीलों से जड़ने वालों को हलाक कर सकता था। लेकिन हमें मालूम है कि उसकी खामोशी फतह की खामोशी थी, उसकी खामोशी इलाही अजमत की खामोशी थी। ये खामोशी मोहब्बत के उम्दा इजहार की खामोशी थी। कई दफ़ा यीशु दुआ के लिए तन्हाई में गए। ये वो दुआई औकात होते हैं जिनसे किसी और का तल्लक या इस दौरान किसी की यीशु तक रसाई ना होती, लेकिन ये वक्त ऐसा होता जब यीशु अपने आसमानी बाप से दुआई रफाकत में बातचीत करते। आप ज़रूर गौर कीजिए कि अगर यीशु को तन्हाई में जाकर दुआ करने की ज़रूरत थी तो क्या मुझे और आपको ऐसे वक्त की ज़रूरत नहीं जब हम तन्हाई में खुदा से दुआ कर सकें। लोगों से बेबाक और मुफसल गुफ्तगू में हम थक जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे जिस्म को आराम की ज़रूरत महसूस होती है और इसी तरह हमारे जहनों को भी। हालांकि एक वक्त होता है कि हम कुछ कहें और एक वक्त होता है कि हम कुछ सुनें और खामोश रहें। किसी भी खित्ते की दुनिया शोरो गुल से दो चार है और ऐसी उलझन का शिकार दुनिया के अपने शहरों में हमें अपने आसमानी खुदावंद की आवाज़ सुनने में मुश्किल महसूस होनी चाहिए। इसलिए हमें यीशु के कामिल दुआया नमूने पर अमल करना चाहिए कि हम भी अपने आसमानी बाप से बातचीत करने और रहनुमाई पाने के लिए तन्हाई में दुआया वक्त गुजारें। कलाम मुकद्दस से रहनुमाई मिलती है कि एक वक्त ऐसा होता है कि जब हम अपने लोगों के सवालों के जवाब देने में खामोश रहें। यीशु ने कहा कि सुच्चे मोती सूरों के आगे नहीं डालने चाहिए, इसीलिए कभी कभार तो खामोशी ही बेहतरीन और उम्दा जवाब होता है। यीशु अपना बेहतरीन दफा रखते हैं और इसी तरह आज भी खुदावंद यीशु मसीह हमेशा सवालात और चैलेंजेस का जवाब नहीं देते। पिलातुस और हेरोदिस यीशु को ना तो तोड़ सके जबकि अपने आप में खुद टूट फूट का शिकार रहे। वाज़ेह तौर पर उनके सवालात ने उनके मुहरकात को जाहिर कर दिया और हम समझ सकते हैं कि उनके मुहरकात की बुनियाद खुदगर्जी और उनकी दुनियावी और हुकूमती ताकत का पेशखैमा थी। और यही सबब था कि वो अपने जोर और ताकत और इख्तियार से यीशु की जान नहीं ले सकते थे।
यसू ने तो आप खुद अपनी जान हवाला की कि कोई शख्स यसू कोई जान ना ले सकता था और ना ही कई सिपाहियों की फौज यसू की जान ले सकती थी, बल्कि यसू ने आप खुद उनको अपना आप हवाला किया और अपनी जान अपने बाप को सौंपी, इसीलिए कि यसू की मुसलसल खामोशी ना तो कोई समझौता और ना ही जुर्म का एतराफ़ बल्कि अलाही हिकमत की अजीम मिसाल जानी जाती है। यसू की खामोशी किसी अदम दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं थी, इसलिए कि जो कुछ हो रहा था उस सब पर यसू का मुकम्मल ध्यान था, और अगर आज वो खामोश है तो ये इसकी मोहब्बत और दिलचस्पी की वजह है। हालांकि वो हमारी जिंदगियों को अपनी राह पर चलने के लिए मजबूर नहीं करता, बल्कि वो हमें तलाश करता है और अपनी जिंदगी और फाकत में शामिल होने के लिए बुलाता है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो हमारे इर्द गिर्द हमारे अंदर के शोर की वजह से खामोश है, पर वो हमारा इंतज़ार करता है कि हम उसकी तलाश करें। वो मुंतज़िर है कि हम उसके हुजूर हलीमी इनकसारी फ़रोतनी और मोहब्बत का इजहार करें, जैसा कि कलाम मुक़द्दस की रहनुमाई है कि खुदावंद के सामने फ़रोतनी करो तो वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। याकूब 4 बाब और 10वीं आयत। फ़रोतन और ढूंढने वाला दिल है जो उसकी आवाज़ सुनेगा, क्योंकि जो आली और बुलंद हैं और अब्दुल्लाबाद तक कायम है, जिसका नाम कदूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूँ, और उसके साथ भी जो शिकस्ता और दिल और फ़रोतन है, ताकि फ़रोतनों की रूह को ज़िंदा करूँ और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूँ। यसाया 57 बाब और इसकी 15वीं आयत। यसू की खामोशी की मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी के ईमान के किसी न किसी मौका पर ज़रूरत रहती है। यसू की खामोशी हमें पुकारती है कि हम उस पर भरोसा रखें, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें मांगते हैं जिनसे हमें या किसी और को नुकसान पहुँचे, इसलिए हमें जवाब में खामोशी मिलती है। अक्सर औक़ात हम अपनी ज़िंदगी में इस बात के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं कि हमारी दुआएं ज़्यादा बुलंदी पर नहीं जा रही। दरअसल यसू हमारी सुनता है और हमारे फ़ायदे और बेहतरी की खातिर वो जवाब में खामोश रहता है। अपने पैरोकारों के खिलाफ नज़र आने वाली यसू की खामोशी भी दर हकीकत यसू पर भरोसा रखने की मुकम्मल दावत है। हो सकता है कि वो उस वक्त भी खामोश रहे जब हम निशान और मोज़े के लिए इसरार कर रहे हों, मगर वो हमारे तजस्सुस को पूरा करने के लिए या ख़त्म करने के लिए भी कोई नुकसानदेह बात या हमारे खिलाफ जाने वाला अमल नहीं करेगा। ये उसकी खामोशी है कि किसी तरह की कोई बेहिसी नहीं, बल्कि ये हमारे साथ मुकम्मल और कुव्वत से भरपूर मोहब्बत का इजहार है और हमारे हक में हमारे निजात दहिंदा यसू की कामिल तदबीर है। आम हालात में देखा गया है कि जब कोई शख्स किसी पर इल्ज़ाम लगाता है तो वो शख्स अक्सर दीगर बातों के मुकाबला में ज़्यादा बताना और फिर ज़्यादा नज़र आने की कोशिश करता है, लेकिन यसू खामोश रहा। पर यसू की खामोशी ज़माना कदीम से इस मालूमा दुनिया की कौमों और कबीलों के दिलों से कलाम कर रही है। ये एक बाख्तियार और हक बजानी मुनसिफ की खामोशी है जो दुनिया के गुनाहों की खातिर अलाही इंतज़ाम के तहत कुर्बान हुआ। ये एक फातेह शख्सियत की खामोशी है जिसने आज़ादाना तौर पर हमारी जगह सलीब पर अपनी जान दे दी। उस वक्त कोई कलवरी पर मौजूद भीड़ को हैरत ज़दा कर देने वाली खामोशी आज भी दुनिया जहान के लिए हैरत का बाइस है। मेरे अजीज़ों, इस किताब के 3 बाब को हमने बड़ी सादगी से, जिस तरह मुसन्नफ़ ने बड़ी सादगी से खुदावंद यीशु मसीह की खामोशी के बारे में बयान किया है, उस वाक़े को चीदा चीदा बयान किया है, इसी तौर से बड़ी सादगी से सिर्फ लिखा के आपके सामने पढ़ा गया है। इस तौर से मेरी गुजारिश ये है कि आप इस पैगाम को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि बहुतों तक खुदा के कलाम की ज़िंदा सच्चाइयों का बयान किया जा सके। खुदावंद आपको बरकत दे।